Hello everyone. Today we will start the third chapter of class 10th. That will be the linear equation in two variable. Linear equations two variable. What are, first of all, we will know about the linear equations one variable. Linear equations किसको कहते हैं? linear equations देखो, linear, the meaning of linear equation is that class कि if any equations having degree 1, अगर किसी भी जो होता है equations की डिग्री 1 है, and you well know about the डिग्री कितनी है इसकी? 1 है, that will be the linear equation one variable. ये है linear equation one variable है ना, one variable. अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास दिस वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन वेरिएबल. अब देखो, इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल है, बट व्हाट वी नीड टू स्टडी दैट इज द linear equations two variable. Yani we have need two variables in any equation. Suppose this one x plus y equal to 3. What is this? This is the linear equations two variable class. Yes class, this is the linear equation two variable. And another ax plus b equal to 0. This is the linear equations one variable. Ay plus c, this is the linear equation one variable. And when you are writing ax plus by plus c equal to 0, this is your linear equation. Why it is a linear equation? क्योंकि डिग्री इस पे भी 1 इस पे भी 1 है क्लास. So it's having the degree 1. If the degree is 1 of any equation, then we can say that class this is the linear equation. क्लियर है? यानी 1 डिग्री वाले को ही लिनियर इक्वेशंस कहेंगे. तो अब इसके जो होते हैं सॉल्यूशंस पे हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे कि सॉल्यूशंस होता क्या है. 2x प्लस 3y इक्वल टू 0. देखो, कोई भी एक इक्वेशंस हम लोगों ने ले रखा है. अब इसका जो होता है सॉल्यूशंस क्लास, वी हैव इजिली फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स. वी हैव जस्ट डू इट, दैट इज द माइनस बी एंड x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. इट इज योर आंसर. दिस वन you can find ay equal to minus c and y equal to minus c upon a. But how we can find the solution of x and y from linear equations two variable? दो वेरिएबल के इक्वेशंस को how we can find the solutions? इसके सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सीखना है. तो इसका मेन मेथड्स तीन या चार मेथड्स होते हैं. अल्जेब्रिक मेथड है, 3 मेथड एंड 1 ग्राफिकल मेथड है ना. अगर एक इक्वेशंस दिया रहे तब क्या होगा? एक इक्वेशंस दिया रहे तो क्लास किसी न किसी एक की वैल्यू है ना, वी हैव पुट अदरवाइज y वैल्यू और x वैल्यू एंड यू कैन फाइंड. हम लोग को एक वैल्यू सपोज करना पड़ेगा कि आपका ये है या ये है ना. This gives us a possibility कि maybe this types equations, if you have put y equal to 1,
then what you will get, 2x plus 3 into 1 equal to 0, 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 upon 2. ये हो सकता है when you will put the value of y is 1. अगर हम लोग वैल्यू पूछा जाए y equal to 2, if you are putting y equal to 2 in this equations, then how you will find? That is the 2x plus 3 into 2 equal to 0, 2x is equal to minus 6, x is equal to minus 6 upon 2, that will be the 3 minus 3 class. This is, है ना, इस तरह से. तो how many solutions of this equation? Infinite many of solution. अगर एक solution से दिया रहे, एक equation से दिया रहे, और if you need to find the solution, then class you can say that infinite many solutions. बहुत सारे solutions हो सकते हैं, जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो उसकी solutions देगा, है ना. दोनों में से किसी एक की वैल्यू रखना. बट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक इक्वेशंस के दूसरे इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में, अब दो इक्वेशंस अगर गिवन रहे और क्या फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस, देन वी हैव नीड टू फाइंड द टू इक्वेशंस. तो दो सॉल्यूशन x और y की अलग अलग वैल्यू आएगी. आई होप सो you have clear. Now we will take an example. And yes class, as I told you that कि linear equations always having a straight line graph. हमेशा क्या होता है, linear equations का straight line graph होगा. You well know, we have already told you that. तो now meaning suppose that कि a linear equation ax1 plus b by 1 plus c1, this one equal to 0 है, and another ax2 plus b, इसको भी करते हैं x1 नहीं b1 a1 b1 c1, a2 b2 and b2y plus c2 equal to 0. Let we have just suppose it, let a1 x b1 y plus c1 equal to 0, a2 x b2 y plus c2 equal to 0 है क्लास. Now you can tell me कि इसका सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड से, है ना. हाउ यू विल सॉल्व इट? बाय ग्राफ के द्वारा कैसे आप सॉल्व करोगे? तो कोई भी दोनों इक्वेशंस का तीन पॉइंट हम लोग रख के देख लेंगे. एक्स के जगह पे क्या क्या होता है वो आगे हम अभी बताएंगे कि कैसे ग्राफ बनाना है. क्लास नाउ लेट a1 x b1 प्लस c1 a1 a2 है. नाउ अगर ग्राफ कट कर रहा है, इफ ग्राफ इंटरसेक्ट वन पॉइंट, दिस पॉइंट, वन पॉइंट, है ना, दिस पॉइंट, इसमें जो होता है क्या होगा, वन पॉइंट पे वन पॉइंट है, दैट्स वाई एग्जैक्टली वन ऑर्डर पेयर ऑफ सॉल्यूशन. केवल और केवल एक ऑर्डर पेयर होगा x की वैल्यू में. अगर कहता है द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हो ऐसे, है ना, ये भी चला जाए और दिस वन ये भी, ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे क्लास, है ना. और इसका द टू लाइन्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक ही तरह का होना चाहिए, है ना, तो उसको हम लोग आइडेंटिकल कहते हैं. और इसमें जो होता है एक दूसरे पे इसका ग्राफ ओवरलैप करेगा, इसकी ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी. सपोज ये है ना, तो इसकी भी दूसरी भी ग्राफ इसी पे बन जाएगी, दूसरी लाइन. तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा क्लास, है ना. यहां पे देखना a1 ये जो है, अगर इसकी कॉफिशिएंट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो,
तब सीधे कहिएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। द टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल कैसे होगा? इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, दिस इज द पैरेलल लाइन, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा क्लास? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों अगर इक्वल हो जाता है ना, देन वी कैन से दैट इट इज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इसकी लाइन, ये जो लाइन जो इसकी जो ग्राफ होगी वो कंसिडेंट होगा, है ना, कंसिडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा क्लास। जब ऐसा इसमें कैसा होगा कि जैसे कि देखो 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 है ना, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। और इसका जो हो गया कितना हो गया? 4x प्लस 8y इक्वल टू 18। अब देखो ग्राफ तो दोनों एक ही है, 2 कॉमन यहां से ले लेंगे तो दोनों का ग्राफ एक ही तरह का होगा इसी पे, तो एक दूसरे पे ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा क्लास। Yes class, now we have taken our examples, it is your NCERT examples, है ना, so you are able to use this one. 10 a student of class 10th, है ना, class 10 took a part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, है ना, तो पहले जो होता है हम लोग इसको 2 वेरिएबल पे सॉल्व करना है, 1 वेरिएबल पर भी हो सकता है, but we will take 2 variable because we want to learn the graphical methods and a solution of 2 variable. That's why class let number of boys is equal to x and number of girls equal to y. अब देखो दोनों टोटल स्टूडेंट कितना है क्लास? x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन है। और ये कितना है? x प्लस, एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज से कौन अधिक है? गर्ल्स अधिक। इफ the number of girls is 4 more than, है ना, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 4। ये सेकेंड इक्वेशन, क्यों? क्योंकि लड़के से लड़की ज्यादा है। क्लास नाउ यू कैन राइट x माइनस y इक्वल टू, नहीं रहने दो, यहीं पे 2 इक्वेशंस, है ना, इसको इधर लाने से कोई फायदा नहीं है क्लास। चलिए अब इसका एक 3 पॉइंट दोनों को बनाना है। ये ग्राफिकल मेथड मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूं क्लास। नाउ x प्लस वाई है, इसके 3 इक्वेशंस ले लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसके 3 पॉइंट हम लोग रखेंगे, 3 पॉइंट, है ना, या 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा। x बाय, अगर मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू नहीं, फाई की वैल्यू 0 रखता हूं, तो ये कितना आ रहा है? 10, ठीक है ना। और अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू 7 रखता हूं, तो x इक्वल टू 3, कुछ और भी एक आध रख सकते हैं जो भी आपके मन में हो, है ना। इफ यू आर पुटिंग 2, y वैल्यू 2, तो x वैल्यू कितना आ गया? 8, है ना, 3 वैल्यू आ गया क्लास। नाउ दिस इज, ये इसका हो गया। अब इसका सेकेंड इक्वेशंस का 3 वैल्यू निकाल लीजिए।
यहीं पे कर दे रहा हूं। ये x एंड y है क्लास। y की वैल्यू अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? इफ वी आर पुटिंग x वैल्यू 3 तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो गया कितना क्लास, और एक वैल्यू रख लेता हूं। इफ यू आर पुटिंग 2 x वैल्यू देन y वैल्यू दैट विल बी 6। ये दोनों इक्वेशंस हमारा तैयार हो गया। अब देखो यहां पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना, 10 तक लेना है क्लास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस वन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा हमारा है x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है ना। ये ओरिजिन है 0 0 प्लस 10, x 10 लेना है तो y 0, यानी हमारा ये हो जाएगा 10 एंड 0। दूसरा 3 एंड 7, x 3 तो ये कितना हो जाएगा x that will be 3, y will be 3 and 7, 3 and 7। now 8 and 2, 8 and 2, this 8 and 2 क्लास। अब इसको हम लोग मैच कर देंगे। आप लोग जो होता है, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा है ना, ऐसे। ठीक है क्लास, ग्राफ स्केल से आप ड्रॉ करोगे तब। इसका कितना है 1 और 5। ये हमारा जो इक्वेशंस हो गया क्लास, ये किस ग्राफ का है, यहां पे नाम लिख लेंगे x प्लस y इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट दैट विल बी 1 एंड 5। 1 x पे 1 तो ये कितना हो जाएगा क्लास, इस पे 5, दिस वन 1 एंड 5। दूसरा 3 एंड 7, 3 एंड 7 इसका ये पॉइंट हो जाएगा है ना। एंड 2 एंड 6, 2 एंड 6 क्लास, 2 एंड ये हो गया 2 एंड 6। अब इसको देखो, यहां पे मिलाते हुए एग्जैक्ट जो होता है 0, यहां पे 1 पॉइंट पे कट किया ना क्लास, 1 पॉइंट तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यानी x इज इक्वल टू इसका क्या होगा 3 एंड y इक्वल टू 7। ये होगा आपका आंसर क्लास, है ना। इसी तरह से हम लोग और भी जो होता है सारे का निकालेंगे क्लास, है ना। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।